Okay, so good morning. Today we will start the topic that is known as what? So today we'll start the topic that is known as uh, coding and sense strand of DNA. Okay, so coding and sense strand of DNA. तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोडिंग स्ट्रैंड and sense strand. Okay, coding strand and sense strand. ठीक है. So during transcription, तो जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओके द टू strands of DNA code for the RNA. Okay, RNA. This was the view in earlier days of molecular biology. Okay, so during transcription, the two strands of DNA code for the RNA. So this was the view in earlier days of molecular biology. But now it is certain that this view is not correct. Okay? Out of the two strands, one looks like RNA bracket में with U instead of T, and the other codes for DNA, codes for RNA. है कि नहीं? So out of the two strands, one looks like RNA and the other codes for RNA. So this is the concept. Therefore, okay. Now, since RNA also grows in the 5' to 3' direction. Okay, so if RNA also grows from 5' to 3' direction, okay, the 3' to 5' DNA strand codes for RNA. समझ रहे हो? तो सिंस RNA 5 to 3 है, तो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड जो है, it will code for RNA. Hence, it is referred to as क्या? Hence, it is referred to as what? Hence, it is referred to as template strand. Okay, template strand or non-coding strand. Okay, or antisense strand. Okay, तो ये इसको template. The RNA is coded on the basis of क्या? DNA to RNA base pairing rule. Okay, the RNA is coded on the basis of DNA to RNA base pairing rule. So what is DNA to RNA base pairing rule? A pairs with U
and okay, A pairs with U and U A pairs with U and T pairs with A, G pairs with C and vice versa. Understood? So A pairs with U, T pairs with A, G pairs with T and vice versa. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए डीएनए बेस पेयरिंग रूल. तो इसीलिए जो आपका जो दैट स्ट्रैंड विच इज कोडिंग फॉर द आरएनए उसको हम लोग कहेंगे टेम्पलेट एंड वो 3 to 5 वाला होगा. क्यों 3 to 5 वाला होगा? बिकॉज आपका जो आरएनए है वो 5 to 3 वाला होगा. फुल स्टॉप. द other strand, okay, the other DNA strand is क्या? The other DNA strand कौन सा? 5 prime to 3 prime. Okay, the other DNA strand that is 5 prime to 3 prime strand is called as sense strand because it looks like RNA but has T instead of U. Okay, it never transcribes into RNA. समझ रहे हो? तो ये स्ट्रैंड कभी भी RNA नहीं बनता है. So it is also referred to as non-template. Okay, it is also referred to as non-template. Okay, it is also referred to as non-template या anti-sense strand. ठीक है? So please remember, कल से जो लोग आप माने अभी तुम्हारा 30 मिनट हो गया क्लास का, तो जो लोग 30 मिनट के बाद ज्वाइन करोगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा. टुडे आई विल चेंज इन जूम, तो वंस आई रिमूव यू कैन नॉट रिजॉइन. ठीक है? तो इसलिए तुम लोग का क्या सर है? हाँ, रात के 10 बजे आके ज्वाइन करोगे ना क्या क्लास? हाँ, क्या हुआ? सर वो मतलब सर पहले वाला स्ट्रैंड को भी एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसे भी एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं क्या? नहीं 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 सॉरी सर. पहले नो 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 एंड मैं इसको कोडिंग, ये ना दिमाग खराब हो जाता है ना, ये लोग जो ऐसे कटर कटर करते हैं. तो टीचर भी तो इंसान है ना, तो इसको एंटी कोडिंग या नॉन कोडिंग बोलते हैं. नॉन कोडिंग. अरे सेंस सर तो पहले वाले को, हाँ तो सर पहले वाला भी कोडिंग होना चाहिए. कौन सा? हाँ 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 सर पहले वाला yes, स्ट्रैंड yes, 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 yes. जो नहीं 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 पागल, जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एंड जो आपका सेंस स्ट्रैंड होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है. ओके, वो नॉन टेम्पलेट है. अंडरस्टूड? तो प्लीज रिमेंबर, सेंस स्ट्रैंड जो है वो दिखता आरएनए जैसा है. एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी है. पहले जब वाटसन एंड क्रिक जेनेटिक्स हुआ करता था तो कोडिंग स्ट्रैंड कोड्स फॉर आरएनए ऐसा बोला जाता था, इसीलिए वो उसका नाम पड़ गया है पहले से कोडिंग. ओके, आज वो टर्म है नहीं बट हम कंपेयर करते हैं. अंडरस्टूड? उठा. तो जब वाटसन एंड क्रिक, चुप रहो, जीन्स एक वॉल्यूम ऑफ बुक है जिसका अभी 12 या 13 एडिशन आ चुका है. तो जीन्स बुक पहले लिखते थे वाटसन एंड क्रिक. तो जब तक वाटसन एंड क्रिक उस बुक को लिखते थे, दैट इज कॉल्ड वाटसोनियन एरा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी.
तो उस एरा में हम लोग उल्टा बोलते थे, समझ में आया? yes तो sir, यूज्ड टू yes. टेल उल्टा। ओके, नाउ आया समझ? तो उसको हम उल्टा बोलते थे। तब हम मानते थे कि जो 5 to 3 है वो आरएनए के लिए कोड करता है, इसीलिए उसको हम कोडिंग से, जो 3 to 5 है वो जो है वो आपका कोड करता था। ओके, इसलिए क्या वो 5 to 3 कोड करता था एंड 3 to 5 कोड नहीं करता था, इसलिए उसका नाम कोडिंग बन गया है। किंतु आजकल बेंजामिन लेविन लिखते हैं जीन्स बुक, ठीक है? तो लेविनियन जेनेटिक्स में क्या चेंजेस आया है? लेविनियन जेनेटिक्स में जो चेंजेस आया है उसमें आपका क्या हो गया कि जो लोग, ओके, जो आपका स्ट्रैंड डीएनए बनाता है आरएनए, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो टेम्पलेट एंड सेंस they are terms of Levin. Coding and non-coding, that is the term used by whom? That is the term used by Watson and Crick. Watson and अब Crick. वो चीज बदल गया है। ओके, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आजकल उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि वो जो है पहले उसका उल्टा बोला जाता था। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आजकल का टर्म है टेम्पलेट एंड सेंस। कोडिंग नॉन कोडिंग ये वाटसन जेनेटिक्स का टर्म है, इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड पहले वो 5 to 3 को बोलते थे, ओके, नॉट 3 to 5। अंडरस्टूड? चलिए, सो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए मैं इसको आपका डायग्राम, आई विल शो यू द एनसीईआरटी डायग्राम आल्सो। ये हमारा यूज होगा कहाँ? It will be used in case of your क्या? This will be used in case of transcription. So I am sharing a screen, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली जब ये बार बार आते हैं ना बच्चे, वो स्क्रीन हैंग हो जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है बाद में। तुम लोग को मजा आता है सर का कुछ कर नहीं रहे, बट क्या है वो पूरा सब बंद हो जाता है। तो इसीलिए कल से मैं डिसेबल कर दूंगा, जिसको रिमूव किया वो आ नहीं पाएगा दोबारा। तो इसलिए यू हैव टू ज्वाइन विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ क्लास। वो तो आपको तो इतना देर बैठे थे, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या करेंगे उसको? दिखा? Yes sir. आर यू एबल टू सी दिस स्ट्रैंड, ये वाला? Yes sir. तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन में गिवन है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। फाइन। सो इधर आप क्या देख रहे हैं? ये आपका 5 to 3 स्ट्रैंड है एंड ये आपका ऑपोजिटली 5 to 3 स्ट्रैंड है। इसमें मैं एक बना देता हूं, एक और आरएनए स्ट्रैंड हम बना लेते हैं, है कि नहीं? तो सपोज हम आरएनए स्ट्रैंड बनाएंगे इन योर पिंक कलर। तो आरएनए हम किस स्ट्रैंड से बनाएंगे? इस स्ट्रैंड से बनाएंगे आरएनए। ओके, तो ये हम बनाएंगे आरएनए। ओके, तो ये मेरा स्ट्रैंड है, याद रखना, ये आपके बुक में नहीं है। सो इसीलिए यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इधर आपका ये हो जाएगा 5, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 5, एंड इधर 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 3। तो सपोज इधर ए है, तो इधर क्या होता है? टी। बट इधर क्या, इधर जी है, तो सी, सी जी, टी ए, ए टी, जी सी, सी जी, सी जी, सी जिंगपिंग, टी ए, टी ए टी, टी ए। सपोज, तो अब यू सी द, आपको कौन सा क्लास अच्छा लगता है? जेजे जूम ना जेजे स्कूल? Zoom. The Zoom. Zoom. क्योंकि ये सब हम सोच भी नहीं सकते हैं इन स्कूल। तो अब लेट अस मेक द आरएनए। ओटा विल मेक द आरएनए। आप बताइए, आरएनए बनाइए।
ए से क्या ये टेम्पलेट है, तो अब हम इसको देख कर बनाएंगे। तो ए की जगह पर क्या लगेगा? यू यू। इधर सी तो दिस इज यू सी जी जी ए ओ यू यू सी जी 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 ए ए ए ए यू यू ए। समझे? एंड डजंट इट लुक लाइक दिस? ओके, ये दोनों स्टैंड को देखिए, सी जी ए ए Yes, सी sir. Yes, sir. जी जी ए। तो इसीलिए Yes, sir. कोडिंग स्ट्रैंड लुक्स लाइक आरएनए। ओके, इसलिए उसको कोडिंग नहीं बोलते हैं, गाधे लोग लिखे हुए हैं, उसको सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है। Sense ओके, strand. तो दैट इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड। बट उसको पहले कोडिंग बोलते थे, क्योंकि पहले हम उल्टा कंसेप्ट पढ़ाते थे। पहले हम बोलते थे 5 प्राइम से आरएनए बनता है। ओके, सो लाइक दैट। तो उसके बाद आपका जो, बिकॉज पहले हम लोग बोलते थे ओके एनीथिंग इज मेड इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो अब ये हो गया, तो ये सेंस है एंड ये लुक्स लाइक आरएनए, बट दिस कोड्स फॉर आरएनए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। क्यों? तुम इसको देखकर नया स्टैंड बनाए। अंडरस्टैंड? एनी शक? नो No, सर sir. गर्ल्स आज डमी द टमीज आए हैं सारे। चलिए, तो आ गया समझ। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। ये हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। हो गया? तो ये आपका एनसीईआरटी का कॉपी था ना। अब देखो हम जेजेस का एक मजा देखेंगे। अब देखिए ये आपका क्या है। ओके, वी विल नाउ गो बैक टू आवर बोर्ड। एक बार हमारा डीएवी स्कूल में क्वेश्चन डाला था उन लोगों ने। ओके, तो दे हैड पुट ए क्वेश्चन। तो अब ये बनाया एक स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ ये बनाया एक और स्ट्रैंड, क्लियर। अब इसमें हम 2 डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा नंबर 1 एंड डिब्बा नंबर 2। सेम थिंग ड्राइंग बनाया था, तो सेम ड्राइंग वाज मेड इन द बुक, है कि नहीं। अब सपोज ये 5 to 3 है एंड ये 5 to 3 है। दिस इज 5 प्राइम to 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम to 3 प्राइम। नाउ तो अब आपको ये क्लास वर्क है एक्चुअली आपका, दिस इज क्लास वर्क। नाउ नेम, सो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी। तो ये क्वेश्चन हमारा डीएवी स्कूल का हाफ ईयरली में आया था। तो इसका आंसर बताइए। बाय। Sir, C is template, B is sense, हाँ, क्या है? sir, C is template, सी टेम्पलेट है और सर ए प्रमोटर, A promoter, B sense, Determinator. प्रमोटर, तापर B sense, डिटर्मिनेटर is sense Determinator. and D D is is terminator. terminator. Okay, fantastic. Is this not possible? क्या बताएंगे मेरे को?
Now A is terminator, B is template, C is sense, D is Is promoter. Promoter. Is this Yes, not sir. possible? No, sir. Yes, sir. No, sir. So Why it is no? सर possible, sir. प्रमोटर ऊपर वाले स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड के पास रहता है. ये तो एक और बकवास स्टेटमेंट तुमने बोला है. सर प्रमोटर हर समय टेम्पलेट में लगेगा कि नहीं? तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में थोड़ी लगता है. प्रमोटर हर समय 3 to 5 में लगेगा. तो अगर ये 3 to हाँ, सर. 5 है तो ये प्रमोटर है. असुविधा का ना? सर possible. बी टेम्पलेट है, वो तो 3 to 5 होना चाहिए. यहाँ पर तो 5 to 3 दिया है. क्यों? ये 3 है, उल्टा ले लो. तब एमडी उल्टा ले बनाओ लेंगे. ना. Yes, sir. Possible. You make Yes, sir. Possible. you make RNA like this. अरे हमें 5 to 3 बनाना है. हम यहाँ 5 बनाएंगे, 3 बनाएंगे. दिक्कत क्या है? Possible, sir. So now the question is, what is missing? Okay, तो उसका आंसर क्या है? The Decoded RNA. transcription initiation Initiation step. site. तो एक्चुअली मैंने आपको क्या नहीं दिया है? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उस साल का क्वेश्चन का प्रॉब्लम है. अरे वो उन्होंने नहीं दिया है तो मैं कहां से दे दूं? तो समझ रहे हो? तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू कहां से हो रहा है. नाउ सपोज केस 1. ओके, केस 1 में हम लोग ले रहे हैं, मैं इनिशिएशन साइट बना रहा हूं आपका. ओके, केस 1 में मैं इनिशिएशन साइट बना रहा हूं यहां. दिस इज केस 1. तो विच इज करेक्ट, पिंक और ब्लू? सर पिंक. Pink. तो समझ रहे हो? देन पिंक कंसेप्ट इज करेक्ट. बट अगर ये केस 2 लू में इनिशिएशन साइट, Blue. then if case 2, then blue concept is correct. है समझ? तो इसीलिए जो क्वेश्चन डीएवी बोर्ड में दिया था वो गलत था, क्योंकि उन्होंने इनिशिएशन साइट ही नहीं दिखाया. तो थियोरेटिकली हम किसी को कुछ भी ले सकते हैं. ओके, हर समय प्रोमोटर सामने होगा, टर्मिनेटर पीछे होगा. बस हो गया. अर्पण कोई दुख है आपको? यस सर. यस दुख है? सर हो गए. हाँ, चलो गुड. तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कोडिंग एंड नॉन कोडिंग. तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ डीएनए. टाइप्स ऑफ डीएनए. ओके, तो ऑन द basis of changes in conditions around it. ओके, तो अगर हम लोग डीएनए के कंडीशंस को बदल देते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. ओके, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. उस चेंजेस के लिए हम लोग एक स्क्रीन शेयर देखेंगे. Okay, I will try to show you a screen. चलो स्क्रीन ले आ जाए. चलिए, so now let me
शेयर द स्क्रीन। हो गया? तो ये आपका स्क्रीन है ना। अब इधर आप देखेंगे so this is the different types of DNA we have. Okay, so ADNA, BDNA, cDNA, ddNA and zDNA। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं ताकि आपको नहीं भेजा जाए। तो इसीलिए तो पहला पॉइंट है बेस पेयर्स पर टर्न। तो ये जो BDNA है ये वाटसन एंड क्रिक का DNA है। तो इसलिए आपने कितना बेस पेयर्स पर देखा? 10 बेस पेयर। उसके बाद what is the axial rise? 3.37 angstrom. What is the diameter? पाखापाखी 20 angstrom। एंड ये राइट हैंडेड DNA। बट जो ZDNA है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स 12 होता है। टिल्ट पर एक्सिस 7 डिग्री होता है। एक्सियल राइज 3.7 एंगस्ट्रॉम एंड आपका जो ये लेफ्ट हैंडेड DNA होता है। अभिषेक स्विच ऑफ योर माइक। समझ में आया? उस माइक को करके हूं कर रहा है उस पे। हो गया? So this is the concept. So these are the 5 different types of DNA in different types of conditions. But जो वाटसन एंड क्रिक ने लिया है उसको हम कहते हैं BDNA। तो इसलिए प्लीज रिमेम्बर whatever data is available, जैसे हम लोग क्लास वर्क करेंगे कि इतना DNA में क्या होता है, उतना में कितना बेस पेयर होता है, तो ये सब याद रखेंगे कि किस आधार पे है वाटसन एंड क्रिक DNA। तो अगर मैं ZDNA बोलूं तो वो बदल जाएगा। हाँ बोलो। सर ADNA में लिखा है राइट हैंडेड, वो लेफ्ट हैंडेड होगा? नहीं, ओनली ZDNA इज लेफ्ट हैंडेड। फिर भी आई विल कंफर्म इट। ये ओल्ड डाटाज हैं, अगर बाद में चेंज हुआ है अलग बात है, बट आई विल कंफर्म। लेफ्ट DNA ओनली ZDNA था, अभी ये हो गया होगा तो मैं देखकर बताऊं। ओके सर हाँ बोलो। सर टिल्ट ऑफ बेस पेयर्स टा मैंने कौन? टिल्ट ऑफ बेस पर मतलब हम लोग ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो आपका जो एक्सिस है अगर आप थोड़ा 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 नहीं घूमेंगे तो हाउ विल यू मेक दैट एंगल? आपका जो DNA घूमता है ना, तो पहला बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर में 6.3 डिग्री का चेंज है। तो उससे क्या होगा, माने दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अगर 0 टिल्ट होता तो क्या होता, आपका लैडर जैसे हो जाता, जो बाउंसर सीढ़ी वाले रेल पटरी है कि नहीं। ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए आपका पूरा DNA मुड़ रहा है। अंडरस्टैंड? तो दैट इज द। यस सर। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर ये नहीं मुड़ेगा तो क्या होगा, आपका DNA सीढ़ी जैसा हो जाएगा। यस, रेल ट्रैक जैसा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई देयर इज टिल्ट ऑफ बेस पेयर्स। यस सर, यस सर। चलिए और बोलिए इसको। आई विल कंफर्म। एक्चुअली दिस बॉय अर्पन हैज क्रिएटेड ए कंट्रोवर्सी, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू लेनिंजर मोस्ट रिसेंट एडिशन। तो जो होगा उसको हम फाइनल लेंगे। चलिए और बोलिए। सो वी आर जस्ट गोइंग टू लूज, नहीं वी हैव टाइम, एक्चुअली वी हैव 4 मिनट्स टाइम, तो वी कैन सी। चलिए, तो इसीलिए ये आपका DNA है। नाउ इधर जो नेक्स्ट, तो ये हम लोग ऑलरेडी पेयरनेस डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, जो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक ड्राइंग। एंड दीज आर दी 4 साइंटिस्ट। तो ही इज वाटसन, ही इज क्रिक, ही इज विल्किंस एंड शी इज फ्रैंकलिन। उसके बाद ये जो है ये आपका चारगैफ का कंपोजिशन है। देख रहे हो चारगैफ का कंपोजिशन? उसमें आप देखिए जितना A है पाखापाखी उतना T होता है। 31.7 मैन ले लो, 30.2 इधर है 30.3, G 19.9, साइटोसिन 19.6। तो इसलिए याद रखेंगे ह्यूमंस में 80 बेस पेयर ज्यादा होता है। मोस्टली आप देखोगे यूकैरियोट्स में 80 बेस पेयर ज्यादा होगा। ओके, बट जो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं उसमें कंपैरेटिवली GC बेस पेयर्स ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल। जैसे आप ये देखिए माइक्रोकोकस,
माइक्रोग्रेस में क्या देख रहे हो 37 34 है कि नहीं। तो इसीलिए उसी तरह से आप हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस देख लीजिए 37.7 35.6। तो इसमें पाकापाकी 75% आपका जीसी है, जीसी मिलाकर। ओके तो लाइक दैट, तो इसलिए दे आर मोर जीसी ओरिएंटेड एंड सो ऑन। ये आपका प्यूरिन बाय pyrimidine रेशियो है, इट इज नियरली इक्वल टू 1। एंड ये 80 बाय जीसी रेशियो है, ये देख रहे हो वेरिएबल है 1.08 1.88 0.36 0.39, तो ये सब वेरी कर रहा है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बेस कंपोजिशन। चलिए, सो नाउ दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए वी वर डिस्कसिंग, एंड अब हम चले जाएंगे इन केस ऑफ योर, जो अगला टॉपिक है हम लोग जाएंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, मीन्स हाउ टू पैक डीएनए। अंडरस्टूड। ये एक और कंडीशन है, आप देख सकते हो। आई एम ट्राइंग टू शेयर यू द स्क्रीन, थोड़ा बड़ा किया जाए। कहाँ गया? ना आप इस स्क्रीन को देखेंगे, सो ना इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, वही जो ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए वाला है। तो व्हेन विल यू फाइंड ए डीएनए, ओके थोड़ा सा इतना करते हैं, यस, व्हेन विल यू फाइंड ए डीएनए 75% relative humidity, sodium, potassium, cesium ions. Okay, when you'll find BDNA 92% relative humidity, low ionic strength. तो आपको मालूम है हमारे बॉडी में भी 92% के आसपास वाटर होता है, ठीक है। CDNA कब मिलेगा 66%, ओके, एंड जो ZDNA वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो एंड अर्पन हियर आल्सो इट इज राइट हैंडेड ADNA, है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, हो गया। तो दिस इज वर्टिकल राइज, दिस इज हेलिकल डायमीटर। तो ये आपका एक और है, बट आई विल कंफर्म यू फ्रॉम वाटसन एंड फ्रॉम लेनिंजर, ओके, सो डोंट वरी। उसको खोलने में टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं ब्रेक में खोल के आपको दिखा दूं। हो गया। तो ये